Hello everyone. In this video lecture we are going to learn about the concept called as paging. So what is basically paging is? Paging is a memory management scheme that eliminates the need for contiguous allocation of physical memory. Means what? Paging allows the logical address space of a process to be non-contiguous. Means what? जो भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा था called as external fragmentation. What is the drawback of external fragmentation? Though there is a lot of space available, but that space is scattered in the disk. It is not in a contiguous format. That's why we are not able to satisfy the need of a process even though we have that space available in our memory, but it is in non-contiguous format. So we are not able to occupy that space because it is in non-contiguous format. So that kind of drawback of that external fragmentation is improved with the help of paging concept. Means what? अगर हमारी नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है तो भी with the help of paging we are able to execute that process. Okay, next there are some basic parts like what is meant by frames and what is meant by pages. When we divide our physical memory into fixed size blocks, then that blocks are called as frames. जब हम हमारी physical memory को fixed size parts में divide करते हैं तो that is called as frames. But when we divide our logical memory into some same size or fixed size blocks, then it is called as pages. When we have to run any program, क्योंकि हर बार जब भी हमको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो दैट प्रोग्राम शुड बी प्रेजेंट इन फिजिकल मेमोरी. Okay, means what? When we have to execute any program, that program should be present in our physical memory. Means what? That program should be loaded into frames. So n अगर हमारे पास n pages का कोई program है तो we need to find the n free frames and load that program for execution purpose. Okay, now next concept is page table. What is the need of page table? Page table is used for translating the logical address to physical address. As we have said, in paging all the our physical memory is divided into fixed size parts. Already we have seen in previous video lecture, when we are going to divide our memory into fixed size part, then internal fragmentation will occur. Okay, so paging is facing the problem of internal fragmentation. Okay, so what is meant by paging? हमारी नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी अलोकेशन में जो भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोग्राम, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड है वो नॉन कॉन्टिजियस फॉर्मेट में अगर हमारे पास है तो भी वी आर एबल टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ओके, so this is nothing but the address translation scheme. The address generated by the CPU is divided into two parts. First part is called as page number and second part is called as page offset. So page number is used as an index into page table. मतलब ये page number हमको क्या बता रहा? It contains the base address of each page. What is meant by page? Page means what? When we are dividing our logical memory into fixed size part, then that each block is called as page. So page number यहाँ पे क्या बता रहा? बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच पेज. एंड पेज ऑफसेट यहाँ पे क्या बता रहा? पेज ऑफसेट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन. ओके, सो हियर every address which is generated by the CPU, it is divided into two parts, page number and page offset. Paging model of logical and physical memory. This is your logical memory and this is your physical memory. In logical memory, suppose here P1 process is resides and P1 process is divided into four pages, page 0, page 1, page 2 and page 3. Okay, here one data structure is given called as page table. हर प्रोसेस के लिए उसका सेपरेट पेज टेबल मेन मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा. सो पेज टेबल में यहाँ पे क्या गिवन है? हियर एवरी पेज नंबर इज मैप विथ एवरी फ्रेम नंबर. ओके, यहाँ पे जो भी सीपीयू है, सीपीयू ऑलवेज जनरेट द लॉजिकल एड्रेस. ओके, सो लॉजिकल एड्रेस जब भी जनरेट होगा सो इट रिप्रेजेंट्स और इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेकेंडरी मेमोरी, मीन्स लॉजिकल मेमोरी. ओके,
सो P1 प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट होना है तो P1 प्रोसेस शुड बी प्रेजेंट इन फिजिकल मेमोरी। तो यहाँ पे लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी का मैपिंग कैसे हो रहा, हाउ दैट लॉजिकल एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल मेमोरी, फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ दैट पेज टेबल। हियर एवरी पेज नंबर इज मैप्ड विद द एवरी फ्रेम नंबर विच इज प्रेजेंट इन फिजिकल मेमोरी। यहाँ पे देखो पेज 0, P1 process is divided into 4 pages. Page 0 of P1 process is actually stored in frame 1 of physical memory. देखो यहाँ पे this is frame 1. frame 1 पे क्या stored है, पेज नंबर 0 of P1 process. Likewise पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 4 पे प्रेजेंट है. We'll check whether at frame number 4 page number 1 is present or not. At frame number 4 page number 1 is present, right? At frame number 3 page number 2 is present. Okay, at frame number 3 page number 2 is present. Page number 3 is present as frame number 7. Page number 3 is present at frame number 7. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो इन लॉजिकल मेमोरी P1 प्रोसेस इज स्टोर्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट. ठीक है, बट यहाँ पे जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है फिजिकल मेमोरी में, वहां पे हमने पेजेस को क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया. ठीक है, मतलब जो भी पेजेस लॉजिकल मेमोरी में कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में थे वो पेजेस फिजिकल मेमोरी में नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में है. ठीक है, वो नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में होने के बावजूद भी वी आर एबल टू एग्जीक्यूट द P1 प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट कॉल्ड एज पेजिंग. ओके, here how free frames are being allocated, it represented in this diagram. So this is the before allocation diagram and this is the after allocation diagram. अगर आप यहाँ पे देखते हो जैसे प्रीवियस कंसेप्ट अभी हमने देखा वही कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. सिर्फ यहाँ पे बोला है कि हाउ इट अपीयर्स इन बिफोर अलोकेशन एंड आफ्टर अलोकेशन. सो हियर न्यू प्रोसेस इज प्रेजेंट which is divided into, for example P1 process is divided into again 4 pages. okay, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री फ्रेम्स की लिस्ट गिवन है. ये आपकी फिजिकल मेमोरी है. ओके, मतलब आपकी प्राइमरी मेमोरी है. जो भी यहाँ पे ग्रे कलर के बॉक्स है इट रिप्रेजेंट्स दी फ्री फ्रेम. सो यहाँ पे फ्री फ्रेम की लिस्ट दिए है ऑलरेडी. कौन से ब्लॉक्स यहाँ पे फ्री है, ब्लॉक नंबर 13, 14, 15, 18 and 20. ओके, यहाँ पे फ्री फ्रेम लिस्ट गिवन है. सो आफ्टर अलोकेशन मीन्स आफ्टर अलोकेशन ऑफ ऑल दोज 4 पेजेस इनटू फिजिकल मेमोरी. तो यहाँ पे ये चारों भी पेजेस आफ्टर अलोकेशन, ये चारों भी पेजेस को जब फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी अलोकेट होती है तो हाउ दैट लॉजिकल एड्रेस इज मैप विथ फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ दैट पेज टेबल इट इज रिप्रेजेंटेड हियर. ओके, तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 0 इट स्टोर्ड इन फ्रेम नंबर 14. तो विल चेक कि फ्रेम नंबर 14 पे पेज नंबर 0 प्रेजेंट है, राइट. पेज नंबर 1 स्टोर्ड एट frame number 13. Page number 1 it is stored at frame number 13. Page number 2 is stored at frame number 18. Page number 2 is stored at frame number 18 and page number 3 is stored at frame number 20. So how in this way before allocation and after allocation of pages into physical memory is represented here. So actually now we'll see how that हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है, बट एक्चुअली एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होगा वो हम पेजिंग हार्डवेयर थ्रू यहाँ पे देखेंगे. सो दिस इज द पेजिंग हार्डवेयर वेयर फिजिकल एड्रेस कन्वर्जन कैसे हो रहा थ्रू लॉजिकल एड्रेस ये हम देखेंगे. ओके, ये पेजिंग हार्डवेयर का डायग्रामेटिक व्यू है. यहाँ पे एक CPU दिया गया है, यहाँ पे एक फिजिकल मेमोरी दी गई है. As we know, CPU always generate the logical address and which is pointed to your secondary memory. Okay, so CPU generates logical address. In previous slides we have seen that your logical address is divided into 2 parts, page number and offset. Okay, page number
इंडिकेट्स दी बेस एड्रेस ऑफ योर पेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है फॉर एग्जाम्पल फिजिकल मेमोरी में पेज नंबर 0, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 स्कैटर्ड है, जहाँ पे भी हमारी फिजिकल मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे ये एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि पेज नंबर 0 अगर फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो फिजिकल मेमोरी में सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 1 यहाँ पे सेकेंड पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे पेज नंबर 1 हमारे 5th लोकेशन पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे स्कैटर्ड है। अब यहाँ पे कंसेप्ट देखो कि पेज नंबर 0 यहाँ से सोली हम उठा के फिजिकल मेमोरी में प्लेस्ड कर रहे हैं एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। अब पेज नंबर 0 कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, पेज नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो पेज नंबर 0 में nth पोजीशन पे जो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, ये पूरा पेज उठाने के बाद में जब हम उसको फिजिकल मेमोरी में प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो nth नंबर की इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे भी nth पे ही प्रेजेंट रहेगी। पेज नंबर 1 में अगर सेकेंड पोजीशन पे कोई इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो वो पेज नंबर 1 पे यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहेगी। मतलब हमारा ऑफसेट चेंज नहीं हो रहा, हमारा क्या चेंज हो रहा, सिर्फ लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस, मतलब हमारा एड्रेस ही सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा, जो भी हमारा ऑफसेट है वो ऑफसेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे। देखो जो भी हमारा ऑफसेट है वो ऑफसेट एज इट इज हमने यहाँ से ड्रैग कर लिया लॉजिकल एड्रेस में से और फिजिकल एड्रेस में पुट किया, क्योंकि हमारा ऑफसेट तो यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा, हमारा चेंज क्या हो रहा, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। सो CPU ऑलवेज जनरेट्स योर लॉजिकल एड्रेस विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पेज नंबर एंड योर ऑफसेट। सो ऑफसेट एज इट इज यहाँ पे रख रहे। सो यहाँ पे पेज नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा, पेज नंबर रिप्रेजेंट्स दी बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 है जो फ्रेम नंबर 2 पे प्रेजेंट है, तो दिस रिप्रेजेंट्स दी बेस एड्रेस ऑफ पेज नंबर 1। सो पेज नंबर 1 का हमको यहाँ से बेस एड्रेस मिलेगा। ठीक है, बेस एड्रेस पे यहाँ पे हमको फ्रेम नंबर 2 का एड्रेस मिलेगा, राइट। सो पेज नंबर 1 का बेस एड्रेस मिला, वहां से हमको फ्रेम नंबर मिल रहा, सो फ्रेम नंबर 2 यहाँ से हमको मिल रहा। सो फ्रेम नंबर 2 में जो इंस्ट्रक्शन हमको एक्सेस करनी थी, ठीक है, वो ऑफसेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया एंड आर फिजिकल एड्रेस गेट यहाँ पे जनरेटेड। मीन्स यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में फ्रेम में कौन से इंस्ट्रक्शन हमको एक्सेस करनी है वो फिजिकल एड्रेस थ्रू हम एक्सेस करेंगे। बट वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दैट पेजिंग हार्डवेयर इज दैट हियर योर पेज टेबल इज स्टोर्ड इन योर मेन मेमोरी, दैट इज इट इज स्टोर्ड इन योर फिजिकल मेमोरी। ओके, सो यहाँ पे फिजिकल मेमोरी को एक्सेस 2 बार हो रहा। एक बार CPU पेज टेबल, जैसे यहाँ पे पेज नंबर थ्रू हमको फ्रेम नंबर मिल रहा, तो यहाँ पे CPU फर्स्ट ऑफ ऑल पेज टेबल के लिए एक बार फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करेगा, और दूसरे बार जब हमारा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा तब भी हम फिजिकल मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब 2 बार हमको मेन मेमोरी यहाँ पे एक्सेस करनी पड़ रही अगर हमको एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो, या फिर एक पेज नंबर 0 की कोई इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमको एग्जीक्यूट करनी है तो 2 बार हमको मेन मेमोरी को यहाँ पे एक्सेस करना पड़ रहा, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारा टाइम डिले या टाइम वेस्ट हो रहा इन दैट पेजिंग हार्डवेयर। तो छोटा सा एक मॉडिफिकेशन पेजिंग हार्डवेयर में कोड है। ठीक है, दिस इज द पेजिंग हार्डवेयर विथ TLB, पेजिंग हार्डवेयर विथ TLB, वेयर जो हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, योर CPU, पेज टेबल एंड फिजिकल मेमोरी, राइट। सिर्फ यहाँ पे एक हार्डवेयर ऐड किया है दैट इज कॉल्ड एज TLB, दैट इज ट्रांसलेशन लुकअसाइड बफर। अब ट्रांसलेशन लुकअसाइड बफर मतलब क्या, यहाँ पे सेम जैसे यहाँ पे पेज टेबल में नंबर ऑफ पेज नंबर्स आर गिवन एंड फ्रेम नंबर्स आर गिवन, सेम कॉपी TLB में प्रेजेंट रहेगी। मतलब हर बार जब भी CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करके जब भी हम पेज नंबर थ्रू बेस एड्रेस यहाँ पे ले रहे, तो जब भी ये पर्टिकुलर फ्रेम एक्सेस होगा तो उसकी कॉपी यहाँ पे TLB में रखी जाएंगी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वैसे कॉपीज यहाँ पे TLB में रखी जाएंगी। सो नेक्स्ट टाइम अगर सेम
पेज नंबर के लिए रिक्वेस्ट आती है, सो फ्रिक्वेंटली अगर पेज नंबर 0 ही नंबर ऑफ टाइम्स हमें एक्सेस करना है तो उसकी कॉपी ऑलरेडी TLB के पास अवेलेबल है. सो इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग योर पेज टेबल ऑफ ईच प्रोसेस वी आर गोइंग टू एक्सेस द सेम pages from the TLB, right? As TLB is nothing but your one kind of buffer, one kind of cache. Okay, so instead of accessing the page table which is stored in your main memory, हम क्या करेंगे, कैश मेमोरी जो हमारी है that is your TLB buffer, उसको हम एक्सेस करेंगे. सो ऑब्वियसली मेन मेमोरी में जो पेज टेबल प्रेजेंट है उसको एक्सेस करने के लिए हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है देन दैट ऑफ एक्सेसिंग द TLB, वन काइंड ऑफ बफर. ओके, सो हर बार जब भी CPU को कोई इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूशन के लिए लगती है तो CPU फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च दैट पर्टिकुलर एंट्री ऑफ पेज नंबर इनटू TLB. ओके, इफ CPU को जिसके भी साथ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है वो पेजेस अगर प्रेजेंट है तो TLB हिट विल ऑकर, राइट, एंड इट विल गेट एडेड विद द ऑफसेट एंड फिजिकल एड्रेस विल गेट जनरेटेड. इफ CPU को जो पेज चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए वो पेज अगर TLB में प्रेजेंट नहीं है तो TLB मिस विल ऑकर. ओके, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो TLB मिस विल ऑकर. अगर TLB मिस ऑकर होता है तो हम क्या करेंगे, पेज टेबल को एक्सेस करेंगे जो मेन मेमोरी में प्रेजेंट है. सो ऑब्वियसली पेज टेबल में वो पर्टिकुलर फ्रेम नंबर की एंट्री हमको मिल जाएंगी. वो फ्रेम नंबर के साथ हम ऑफसेट, फर्स्ट नंबर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो पेज में की या फ्रेम में की, या फोर्थ नंबर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो ऑफसेट हम फ्रेम नंबर के साथ ऐड करेंगे एंड आर फिजिकल एड्रेस गेट जनरेटेड. सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा TLB हार्डवेयर ऐड होने के कारण यहाँ पे टाइम जो भी है वो हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ TLB. ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू.